Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 5, Women Change the World. तो आज हम औरतों ने बदली दुनिया इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे बुक का पेज नंबर 54 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे वुमेन चेंज द वर्ल्ड। In the previous chapter, we saw how women's work in the home is not recognized as work. We also read how doing household work and taking care of family members is a full-time job and there are no specific hours at which it begins or ends. तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। In this chapter we will look at work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for men than the women. तो इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। We will also learn about how women struggles for equality, getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women. This chapter will also briefly trace the different types of efforts made by the women's movements to challenge discrimination in more recent years. तो हम ये भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए। पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। Fewer opportunities and rigid expectations. तो अभी हम पढ़ेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। A lot of children in Rosie Mom's class drew women as nurses and men as army officers. The reason they did this is because they feel that outside the home too, women are good at only certain jobs. For example, many people believe that women make better nurses because they are more patient and gentle. This is linked to women's roles within the family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things. तो रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वह अधिक सहनशील और विनम्र होती है। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है
और लड़कियों और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same spot that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. तो अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और परीक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. Sometimes these comes in the form of demands from adults. तो ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है। At other times, they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember that in your class 6th book, you read about how boys at the early age are encouraged not to cry in front of गर्ल्स। तो जैसे मैंने बताया कि कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षा के लिए रूप में होता है, तो कभी ये हमारे अपने मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले, अधिक उन्हें तनख्वाह मिले। यदि वह दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। अब नीचे हम पढ़ेंगे। Xavier was happy with the result of class 10th board exam. Though his marks in the science and math were not high, he had done well in the favorite subjects, history and language. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all. तो ज़ेवियर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देख कर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वह खुश नहीं हुए। उसके मम्मी डैडी उसके रिजल्ट से खुश नहीं हुए। My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too. हे भगवान, Xavier, गणित में तुम सिर्फ
65% लाई हो। भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। आई नो मम्मा, बट इट्स ओके बिकॉज आई डू नॉट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस। आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. तो तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास में क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर्स साइड बाय साइड। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड। तो समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना आज आपने पढ़ा है आप उसको दोबारा रीड करोगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख के लर्न करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।